A very good morning to all of you. Welcome you all in class 12th economics. So as you already know that we have completed whole syllabus of economics, that is macroeconomics and Indian economic development. So from the previous few classes we will continuously revise the chapters. We have done numerous numerical questions of the chapter income determination and the multiplier as well as the national income. Okay. So again we are going to study the different chapters in which the students are still facing the problems. So we have already completed the chapter that is foreign exchange rate, balance of payment and so on. So from the previous 2 or 3 classes we were studying the chapter that is chapter 8. Okay, chapter 8 of your macroeconomics, that is income determination and the multiplier. Okay. So in this chapter we have already discussed determination of the equilibrium by the income, output and employment. So in which we have to study the 2 approach. Okay. So determination of the equilibrium by the AD and AS approach and determination of the equilibrium by saving and investment approach. So according to Keynesian theory, the equilibrium is found where the aggregate demand is equal to aggregate supply. So required AD is equal to the actual AD. Okay. So we have already discussed all these things. Next topic that we have started, that is equilibrium level of employment. So equilibrium level of employment is further divided into 3. That is full employment equilibrium, over full employment equilibrium and under employment equilibrium. Okay. So we have already discussed all these 3 in the previous class. So equilibrium level of employment, full employment level, the situation where the aggregate demand is equal to the aggregate supply or the actual AD is equal to the required AD at the full employment level. Okay. So when we talk about the over full employment level, so this is the situation when the aggregate demand becomes more than the aggregate supply. Okay. So actual demand is more than the required, actual AD is more than the required AD. Okay. So we have discussed. Okay. Next one is underemployment. So underemployment is a situation when AS becomes the more than the aggregate demand. Okay. So actual AD is the less than the required AD. Okay. So all these we have already discussed in the previous class. So in today's class we are going to start the next topic, that is investment multiplier. So in this chapter in this topic we are going to study what is the meaning of the investment multiplier, relation of the multiplier and the MPC, relation between the MPC and the MPS, working of the multiplier in which we have to discuss forward working of the multiplier and the backward working of the multiplier. So last topic of this chapter is the characteristics of the multiplier. So we are going to study all these things. So let's get started. Okay. So the topic is investment multiplier. Investment multiplier. Okay. So investment multiplier is the ratio of the change in income to the initial change in investment expenditure. Okay. So ये जो investment multiplier होता है वो किसका रेशियो है? चेंज इन इनकम टू द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट. बेसिकली इसका मीनिंग यही होता है कि अगर कोई भी इन्वेस्टर्स हैं या प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट में चेंज कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल पहले वो इन्वेस्टमेंट 100 कर रहे थे, अब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करके वो 500 कर रहे हैं. तो इन्वेस्टमेंट के कितना चेंज होने पे इनकम में कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, यही प्रोसेस बताता है मल्टीप्लायर. ठीक है. मतलब कि अगर इनकम हमारी इन्वेस्टमेंट हमारा 100 था पहले, अब हम इन्वेस्टमेंट 500 कर रहे हैं. अब इतना इनकम में इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पे कितना ज़्यादा इनकम में चेंज हो रहा है,
यही सिचुएशन बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, सो इट इज़ द रेशियो ऑफ द चेंज इन इनकम टू द इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कि इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच का रेशियो है, यही रेशियो बताता है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पे, इन्वेस्टमेंट के कितना चेंज होने पे इनकम में कितना चेंज हो रहा है, कितने मल्टीपल टाइम्स इनकम हमारी इंक्रीज हो रही है, यही मल्टीप्लायर होता है। सो मल्टीप्लायर गिव्स रिलेशन बिटवीन एन इनिशियल इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट और करस्पॉन्डिंग इंक्रीज और डिक्रीज इन इनकम। ठीक है, मल्टीप्लायर क्या किसका रिलेशन बताता है कि अगर इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितना इंक्रीज हो रहा है तो इनकम भी कितनी इंक्रीज हो रही है, और अगर इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहा है तो इनकम में कितना डिक्रीज हो रहा है, यही सिचुएशन बताता है मल्टीप्लायर। कि हम अगर इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा करेंगे तो अल्टीमेटली जो हमको उससे आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, इनकम भी क्या होगी, वो ज़्यादा होगी। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट को कम कर दिया जा रहा है, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विच अल्टीमेटली लीड्स टू डिक्रीज इन द इनकम। ओके, सो इन अदर वर्ड्स चेंज इन इनकम इज अ मल्टीप्लायर ऑफ द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कि चेंज इन इनकम क्या है, वो मल्टीप्लायर है किसका, चेंज इन इन्वेस्टमेंट का। कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमने कुछ किया, इन्वेस्टमेंट में चेंज किया तो कितना मल्टीपल टाइम्स आपकी क्या हो रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है, यही बताता है मल्टीप्लायर। ओके, सो इट एक्सप्लेन द नंबर ऑफ टाइम्स इनकम इंक्रीजेज और डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। सिंपली ये यही एक्सप्लेन करता है, मैनी टाइम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड दीज लाइन, कि ये यही एक्सप्लेन करता है कि इनकम कितनी इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। सो सिंपल। ठीक है, तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। मल्टीप्लायर को हम लोग डेनोट किससे करते हैं, के से करते हैं। ओके, के से डेनोट करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लायर denoted by K। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो गया कि K इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। कि इनकम इन्वेस्टमेंट के कितना चेंज होने पे इनकम में कितना चेंज हो रहा है। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है तो इनकम भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है कि कम हो रहा है तो इनकम में कितना डिक्रीज हो रहा है। तो यही रिलेशन बताता है मल्टीप्लायर। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड एमपीसी। कि रिलेशन क्या है मल्टीप्लायर और एमपीसी का। रिलेशन between multiplier and MPC is marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume. Okay, so हमें पता है K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है। सो K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ओके, सो हमें पता है कि अगर हमको डेल्टा आई निकालना है, इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा वाई, क्योंकि ये पता है कि सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। अगर हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे हमें पता है कि सेविंग किसके इक्वल होता है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है। देन एस इक्वल टू क्या होता है, वाई माइनस सी। एस इक्वल टू वाई माइनस सी होता है ना, क्योंकि सेविंग किसके इक्वल होती है, जो भी हमारी इनकम है और हमने जितना कंज्यूम किया। फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम है 1 लाख। ओके, कंज्यूम हमने कितना कर लिया, 60,000 मैंने कंज्यूम कर लिया। तो अब हमें बताना है कि सेविंग कितनी होगी। तो जो भी मेरी इनकम थी 1 लाख और जो मैंने कंजप्शन किया, उसके बाद जो भी पैसा बचा वो मैं क्या करूँगी, अल्टीमेटली उसकी सेविंग करूँगी। दैट इज 40,000।
तो S इक्वल टू क्या होता है, y माइनस सी होता है, ये हमें पता है। तो जब मैंने फर्स्ट सिचुएशन हमने देखा कि जब सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो I इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, y माइनस सी। देन डेल्टा I किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा y माइनस डेल्टा सी। अब हम इस y को क्या करेंगे, स्प्लिटेड फॉर्म में लिखेंगे। देन k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा I को क्या लिखेंगे, डेल्टा y माइनस डेल्टा सी। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करना है, डेल्टा y से डिवाइड करना है। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बाय डेल्टा y, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई डेल्टा y, वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ये इसको साइड में लिख लीजिएगा इधर, वी गेट, सो k इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा y। अब हमको डेल्टा y से डिवाइड करना है और ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y, राइट। सो अगर हम लोग डेल्टा y क्या हो जाएगा 1, डेल्टा y अपॉन डेल्टा y 1 माइनस डेल्टा c अपॉन डेल्टा y क्या होता है, MPC। MPC क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या होता है, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y। तो डेल्टा c अपॉन डेल्टा y क्या हो गया, MPC। ये हो गया रिलेशन किसके बीच में, मल्टीप्लायर और MPC के बीच में। k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। सो मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू MPC। मल्टीप्लायर क्या होता है, MPC से डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि हायर द MPC, जब MPC की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, दैट मीन्स कि मल्टीप्लायर की भी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर MPC की वैल्यू कम होगी तो मल्टीप्लायर की भी वैल्यू कम होगी। सो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द MPC, ठीक है। मल्टीप्लायर और MPC के बीच में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने कैसे किया, k इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, हमने फॉर्मूला पढ़ा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है इसमें, k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा y माइनस सी कैसे आया, ये आया यहाँ से, जहाँ पे कह रहा है कि हम लोग ने अभी देख लिया सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और AD एंड AS अप्रोच में देखा था कि AD इक्वल टू AS होता है, ठीक है। AD क्या होता है, C प्लस आई, AS होता है C प्लस S। देन क्या बचा हमारे पास, I इक्वल टू S। सो ये सिचुएशन क्या हो गई है, जब आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल हो गया है। यहाँ पे हम बोलेंगे कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के इक्वल होता है, और हमें ये पता है कि सेविंग किसके इक्वल होता है, y माइनस सी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना कि इनकम इक्वल टू क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग। कि अगर हमारे पास इनकम आ रही है तो हम क्या करेंगे, या तो कंज्यूम करेंगे या तो हम सेव करेंगे। अब इसी में हमको सेविंग निकालनी है कि हम सेव कितना कर रहे हैं। तो जो भी हमारी इनकम हुई उसमें से जितना भी हमने कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर किया उसको माइनस करके जो भी आएगा वो हमारा सेविंग हो जाएगा। सो S इक्वल टू वाई माइनस सी। यहाँ पे हमने देखा कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होती है एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो हम S को I भी लिख सकते हैं, I इक्वल टू वाई माइनस सी। फिर डेल्टा I क्या हो जाएगा, डेल्टा I इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू रख देंगे, डेल्टा I की डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेल्टा y से आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। सो वी गेट, सो k इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा y, फिर डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा y माइनस ये डेल्टा c डिवाइडेड बाय डेल्टा y, ठीक है। ये डेल्टा y 1 हो जाएगा कट के, यहाँ पे डेल्टा y अपॉन डेल्टा y 1 और डेल्टा c अपॉन डेल्टा y हमें क्या पता है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज MPC, ठीक है। सो व्हाट वी गेट हियर, सो k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। तो यहाँ पे हमने ये रिलेशन देखा। ये रिलेशन देखने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। अगर कुछ ले लेंगे, k की वैल्यू ले लेते हैं या MPC की वैल्यू ले लेते हैं, तो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है और दी निगेटिव रिलेशन है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अगर हमारा क्या हो रहा है, जितनी ज़्यादा वैल्यू MPC की हो रही है उतना मल्टीपल टाइम्स हमारी इनकम भी, हमारा मल्टीप्लायर भी इंक्रीज हो रहा है। और MPC अगर लो हो रहा है दैट मीन्स जो
के की वैल्यू है दैट इज मल्टीप्लायर, वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो ये था आपका रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द एमपीसी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द एमपीएस। marginal propensity to save, that is MPS. ओके, सो MPS क्या होता है, marginal propensity to save कि डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y कि इनकम में कितना चेंज होने पे हमने सेविंग में कितना चेंज हुआ। अगर इनकम हमारी 100 से 200 हो रही है, इनकम चेंज हो रही है, तो इनकम की कितना चेंज होने पे अगर हमको डेल्टा निकालना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, दिस माइनस दिस, ठीक है। क्या करते हैं, चेंज निकालना है तो हम इनकम में कितना चेंज हो रहा है कि हम सेविंग में कितना चेंज करेंगे। बट ऑब्वियस है कि अगर हमको इनकम हमारी चेंज हो रही है तो एक कंजप्शन लेवल जितना हम कंज्यूम करते हैं, अब ऐसा नहीं कि इनकम बढ़ जाएगी तो हम लोग कंजप्शन बहुत ज़्यादा करने लगेंगे, तो अब क्या हो जाएगी, लोगों में एक हैबिट हो जाएगी कि वो कुछ ना कुछ सेविंग करने लगेंगे। तो जैसे ही इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो जो सेविंग की हैबिट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो एमपीएस क्या शो करता है कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई कि इनकम में कितना चेंज होने पे सेविंग में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। So here that is k equal to delta y upon delta I. Okay. So in the last chapter we have already discussed that is MPC plus MPS equal to 1. Right? Remember or not? कि अगर हमारी इनकम क्या है 1, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी इनकम क्या है 1 है, तो हम उस इनकम में कुछ कंज्यूम करेंगे और कुछ सेव करेंगे। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, आगे हम इसका फॉर्मूला डेरिवेशन इसका देखते हैं। सो ये पता है आपको कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। नेक्स्ट k इक्वल टू यहाँ पे सेम थिंग दैट इज सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है, और जब s इसके इक्वल होता है y माइनस सी, देन ये हमने देखा कि सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल है। सो s इक्वल टू y माइनस सी, सो i इक्वल टू y माइनस सी। अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज इन इनकम माइनस चेंज इन कंजप्शन। So same process we will adopted here also. So delta I की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा y माइनस डेल्टा c, okay। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डेल्टा y, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर by delta y, we get, so k equal to delta y upon delta y minus delta y upon delta y minus delta c upon delta y, ठीक है। डेल्टा y से हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया, ओके। सो k इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई क्या हो जाएगा 1, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई इज MPC, तो अभी एक लाइन मैंने ऊपर बोला था दैट इज क्या होता है, MPC प्लस MPS किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो आप कि जब हमें MPS यहाँ पे निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस MPC। अब जब यहाँ पे आपको 1 माइनस MPC किसके इक्वल दिख रहा है, MPS के, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC रख सकते हैं, 1 माइनस MPC को MPS, यस। सो k इक्वल टू 1 अपॉन MPC।
So this is the relation between the multiplier and the MPS. यहाँ पे क्या हो रहा है कि K किसके इक्वल है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, कि इन्वेस्टमेंट के कितना चेंज होने पे इनकम में कितना चेंज हो रहा है. सो ये पता है आपको, K इक्वल टू डेल्टा वाई डेल्टा आई हो गया. सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल होता है. S इक्वल टू वाई माइनस सी, I इक्वल टू वाई माइनस सी, बिकॉज सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट. अगर हमको डेल्टा आई चाहिए तो डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी हो जाएगा. तो हम लोग को क्या करना है, इसको स्प्लिट कर देंगे डेल्टा आई को, तो ये डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी. नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, सो डिवाइड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द डेल्टा वाई. डेल्टा वाई से हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना है. सो के इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. ओके, सो जब डिवाइड करते हैं हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, क्या हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज 1, देन डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई 1 इज ऑल्सो 1, एंड डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई हमें पता है कि क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. यहाँ पे हमने देखा कि एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होता है, 1 के. अगर हमको एमपीएस जानना है तो हम 1 माइनस एमपीसी करके वैल्यू निकाल सकते हैं. सो के इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस. ठीक है, सो इसके थ्रू हमने क्या देखा, रिलेशन बिटवीन द मल्टीप्लायर एंड द एमपीएस. ठीक है, सो नेक्स्ट, so there are number of numerical questions are also here, and you have also done all these numerical questions. So the relation between the multiplier and the MPS is when there is higher the MPS, lower will be multiplier. इसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है किसके बीच में, सेविंग और एमपीएस और मल्टीप्लायर के बीच में. बिकॉज मल्टीप्लायर आपका क्या बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट के कितना चेंज होने पे इनकम में कितना चेंज हो रहा है. अगर एमपीएस की लोगों की हैबिट हो गई, मतलब लोग अब सेविंग ज़्यादा करेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे, कम करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इनकम भी क्या होगी, कम होगी. तो हायर द एमपीएस, जितना ज़्यादा लोग सेविंग करेंगे उतनी ज़्यादा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा. इसलिए क्या होता है कि लोअर विल बी द मल्टीप्लायर और लोअर द एमपीएस, हायर विल बी द मल्टीप्लायर. अब सेविंग लोग कम करेंगे, जब सेविंग कम करेंगे दैट मीन्स कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे. जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो इनकम जनरेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी. ठीक है, तो रिलेशन क्या होता है, मल्टीप्लायर और एमपीसी का पॉजिटिव रिलेशन होता है. हायर द एमपीसी, हायर द वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लायर, lower the MPC, lower the value of the multiplier. Next is the relation between the MPS and multiplier. So higher the MPS, lower will be the multiplier, lower the value of MPS and higher will be the value of multiplier. Okay, so this is all about your relation between multiplier and MPS. Next topic that we are going to study is working of multiplier, how the multiplier works in an economy. So the next topic is working of multiplier. Okay? Working of multiplier. Okay, so the working of the multiplier is divided into two, that is forward working of multiplier and backward working of multiplier. ठीक है, working of multiplier is divided into
two, that is forward working of multiplier and the backward working of multiplier. Okay. So when we talk about the forward working of multiplier, so in which when the investment increases, when the change in investment is increases, so that the change in income is also increasing. So when we talk about the backward working of multiplier, in this case when the change in investment is decreases, so the change in income is also decreases. सिंपल सा यही है कि जब कोई भी इन्वेस्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे. कुछ पहले वो लोग कुछ 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, अब कुछ 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो उनके इन्वेस्टमेंट में कितना डिफरेंस आया, पहले 100 अभी 200. तो जो 100 रुपीज़ का 100 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उसके रिटर्न में क्या होगा कि जो भी इनकम जनरेट हो रही है बाय दी इन्वेस्टमेंट, तो उससे क्या होगा कि इनकम भी कुछ मल्टीपल टाइम्स क्या होगी, वो इंक्रीज होगी. तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. जब इन्वेस्टमेंट और इनकम में क्या हो रहा है, दोनों ही इंक्रीज करिए. जब हम बात करते हैं बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर का मतलब है कि जैसे ही चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रही है, जो भी इन्वेस्टमेंट में हुआ है वो डिक्रीज हो रही है, तब वो जो भी इनकम है वो भी क्या हो रही है, ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाती है. तो ये होता है आपका फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड द बैकवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. ठीक है. सो फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में हमें कुछ के स्टेप्स है. उस स्टेप्स के बाद हमें क्या करना है कि मल्टीप्लायर कैसे इकोनॉमी में वर्क करता है, कि अगर कोई इन्वेस्टर्स कुछ इन्वेस्ट कर रहा है तो कितने मल्टीपल टाइम्स उसकी इनकम इंक्रीज होगी, यही आपका मल्टीप्लायर बताता है. ठीक है. अब इसका हम लोग प्रोसेस देखेंगे कि कैसे मल्टीपल टाइम्स इनकम इंक्रीज हो रही है. ठीक है. सो इफ विथ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्रीजेस मल्टीपल टाइम्स. ओके. कि इनकम के इन्वेस्टमेंट के कुछ इंक्रीज होने पे इनकम भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. इट इज़ नोन एट फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर बोलते हैं. सो मल्टीप्लायर वर्क ऑन अ सिंपल थ्योरी. मल्टीप्लायर है वो सिंपल थ्योरी पे वर्क करता है, दैट इज द मोर द कंजप्शन एक्सपेंडिचर मोर विल बी द इनकम जनरेशन. जितना ज़्यादा कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा उतना ज़्यादा इनकम जनरेशन भी होगा. ओके. सो ये जो मल्टीप्लायर है वो सिंपल थ्योरी पे वर्क करता है कि जितना ज़्यादा कंजप्शन, मोर द कंजप्शन एक्सपेंडिचर मोर विल बी द इनकम जनरेशन. उतनी ज़्यादा क्या होगी, इनकम भी जनरेट होगी. वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. सो इन्वेस्टमेंट जनरेट्स इनकम. इन्वेस्टमेंट, कुछ भी इन्वेस्टमेंट हो रही है, इन्वेस्टर कुछ भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या हो रहा है, इनकम में उसमें जनरेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ इनकम जनरेट हो रही है. सो एडिशनल इनकम कॉजेज अ चेंज इन कंजप्शन. कि जैसे ही एडिशनल इनकम जनरेट हो रही है, जैसे ही हम लोग कुछ क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे. ठीक है. इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट इस पर्पज से नहीं कर रहा है कि उसको अल्टीमेटली क्या होगा, लॉस होगा. सब लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं बेसिकली फॉर द रीज़न ऑफ द चेंज इन इनकम और द इंक्रीज इन द इनकम. ठीक है. तो जैसे ही इन्वेस्टमेंट होगी वो क्या करेगा, इनकम जनरेट करेगा. ठीक है. थ्रू विच इनकम जनरेट. सो चेंज इन कंजप्शन डिपेंड अपॉन द MPC. अब एडिशनल इनकम कॉजेज चेंज इन कंजप्शन. फिर ठीक है, जैसे ही इनकम, एडिशनल इनकम बढ़ी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कुछ किया गया, उससे कुछ इनकम में चेंजेस आया कि एडिशनल हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया, तो इनकम क्या हुई, जनरेट हुई. फिर एडिशनल इनकम क्या करता है, चेंज इन कंजप्शन. कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी 50,000 है. ठीक है. अब मेरी सैलरी क्या हो गई, 80,000 हो गई. तो ये जो 30,000 का इंक्रीमेंट हुआ, 30,000 मेरी इनकम इंक्रीज हुई, तो ऑटोमेटिकली जो मेरा कंजप्शन है वो भी चेंज हो जाएगा. मैं भी क्या करूँगी कि पहले जो सारी जो बेसिक नीड्स के अलावा भी जो आदमी की नीड्स होती है, वो पहले आदमी उसको परचेज नहीं कर पाता था. अब जैसे इनकम इंक्रीज होगी तो कंजप्शन लेवल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो चेंज इन कंजप्शन डिपेंड्स अपॉन दी MPC. जो जैसे ही कंजप्शन में चेंज हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है,
चेंज इन दी एमपीसी। एमपीसी के चेंज होने पे क्या हो रहा है कि कंजप्शन में भी चेंज हो रहा है। कैसे कि एमपीसी क्या बताता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू बताता है कि डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई कि चेंज इन इनकम, इनकम के कितना चेंज होने में कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही चेंज इन कंजप्शन, कंजप्शन किस पे डिपेंड करेगा, एमपीसी पे, कि मेरी इनकम में कितना जनरेशन हुआ है, तो ऑटोमेटिकली मेरा कंजप्शन में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जनरेट एडिशनल इनकम। ठीक है, जैसे ही एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेंगे, वैसे ही एडिशनल इनकम भी जनरेट हो जाएगी। क्योंकि जब कोई कंज्यूम करेगा ज़्यादा, हमारा क्या है, मेरी इनकम बढ़ने से मेरा कंजप्शन लेवल भी अगर बढ़ता है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर, हम लोग कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली इकॉनमी में पैसा आएगा। इकॉनमी में पैसा आने का मतलब है कि इनकम क्या होगी, लोगों की जनरेट होगी। ठीक है, तो एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या जनरेट करता है, एडिशनल इनकम। ओके, सो दिस प्रोसेस कीप रिपीटिंग टिल द टोटल इनकम increase in income equal to the product of the multiplier and the change in investment। अब ये जो प्रोसेस है वो तब तक चलता रहेगा जब तक जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो किसके इक्वल नहीं हो जाता, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये जो प्रोसेस मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट इनकम जनरेट करता है, एडिशनल इनकम कंजप्शन जनरेट करेगी, हम लोग कंजप्शन करेंगे, जैसी कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, एमपीसी पे डिपेंड करता है। फिर एडिशनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या करेगा कि एडिशनल इनकम जनरेट करेगा। अब ये जो सारा प्रोसेस है वो प्रोसेस किस पे डिपेंड करता है, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल व्हेन द चेंज इन इनकम किसके इक्वल हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लायर एंड द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो ये प्रोसेस till that level it process will be continuous।